Yes, welcome all of you in ज्ञान विविध चैनल सेठ की सुरक्षा काफी आकर्षण के भाग है। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों क्लास की थर्ड ईयर इसकी पॉइंट है प्रिल्यूड which is composed by T.S. Eliot. But that what you know, there are only 6 and 7 points which is described in your third year, and Indian writer which are 8 and 9 points which is also prescribed in Indian writer. देखिए कुछ आपके फर्दर राइटरों के पॉइंट है, कुछ आपके इंडियन राइटर की पॉइंट है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस T.S. Eliot point prelude. First we third year to say first and all we to know when and where was T.S. Eliot born. T.S. Eliot was born in 18th century 88 and 1965. इनका जन्म 1888 के अंदर लुईस पॉट के अंदर हुआ था और 65 के अंदर ये एक्सपायर हो गए थे. He was born on 1888 where St. Louis in America. We can say that he was born at St. Louis in America, and after that he migrated in Europe and he lived for a long time in Britain. We can say that he lived in England and he accepted the citizenship of England. But we can say that he was an American in birth. जन्म से तो वो अमेरिका थे, लेकिन वो माइग्रेटेड ना होकर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था, इंग्लैंड के अंदर कर दिया था. तो दिस हिस्टोरिकल पॉइंट which is composed in 1910 and 1911 and published 1915. बच्चों ये कविता जो है प्रिल्यूड, ये कविता उन्होंने T.S. Eliot ने 1910 के अंदर या 11 के अंदर लिखी थी एंड पब्लिश्ड इन 1915. और उनका जन्म हुआ था 1888 के अंदर और एक्सपायर हुई थी 65 के अंदर. और अमेरिका के लुईस नाम की जगह है सेंट लुईस. सेंट लुईस के अंदर अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और ये माइग्रेटेड कहाँ हो गए, इंग्लैंड में आके माइग्रेटेड हो गए. ही बिलोंग्स टू प्रोजेक्ट century 20th century writer. We can say that he was the 20th century writer in English literature. He belongs to the American and British tradition. He belongs to the American and British tradition. दोनों कल्चर को बिलोंग करते थे. क्यों? इनका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ था, लेकिन ये ब्रिटिश जो ट्रेडिशन थे उससे भी फेमिलियर थे, परिचित थे. And he came over England 1915. जब इसकी कविता प्रिल्यूड पब्लिश हुई थी 1915 के अंदर, that time T.S. Eliot migrated in England. और फिर वो 1915 के अंदर इंग्लैंड आ गए and he accepted the citizenship of the British. Okay, and he wrote several plays and poetic drama. He wrote several plays and poetic drama. And he got Nobel Prize in the field of education 1948. 1948 के अंदर इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था. Nobel Prize in the field of education he got the Nobel Prize 1948. And he attended with the Ezra Pound. Ezra Pound advised him to correct the Westland point. आपने ये Eliot की कविता का नाम सुना होगा, the Westland, which is very popular. Westland point, which is very popular point in English literature. और जो Pound थे, Ezra Pound advised him to amend in this point. And I think this point is described in first grade lecture. First grade lecture के कोर्स के अंदर भी इस कविता को describe किया गया है. फर्स्ट ग्रेड lecture की आरपीसी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट होती है, उसके अंदर the Westland point is described. वो निर्धारित है, which is composed by T.S. Eliot. And Ezra Pound advised him to amending
समथिंग, उसने कुछ सलाह दी थी कि इस कविता के अंदर कुछ बदलाव कीजिए, तो उसकी सलाह के कारण उसने ऐसा पाउंड की सलाह के कारण उसने कुछ वेस्ट लैंड के अंदर कुछ परिवर्तन किए and he became the publishing director of Faber and Faber. Faber and Faber नाम की एक जो publishing है, Faber and Faber, and he became the publisher director of this. Thus, he was 28th century writer in English literature. Today, we are going to read the poem Prelude. I think Prelude poem is divided into 4 parts, but today we are going to study only 2 equal parts. And next video I will tell next episode. Okay, the first and second episode. First of all, we should know what is the meaning of prelude. I am telling you, this means prelude. Prelude means of a preparatory exercise expected to lead to something more or full fledged in musical terminology. अब musical terminology में इसका क्या अर्थ है और वैसे prelude का क्या अर्थ होता है? Also it is a carry to a meaning of the introductory musical piece of the to be a followed by a principal movement. देखिए बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ? prelude शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक कार्य जो अधिक विस्तार की ओर से हमें ले जा सकता है। संगीत की भाषा में इसका अर्थ है प्रारंभिक संगीत जिसके बाद मुख्य संगीत आता है। प्रारंभिक संगीत जिसके बाद मुख्य संगीत आता है। म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से prelude का यह अर्थ लिया है। बट इन दिस पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट के अंदर T.S. Eliot shows the real picture of London. We can say that similarly we have read the poem William Black poem London. आपने विलियम ब्लैक की लंदन पोएम सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी थी, आपकी सेकंड ईयर के अंदर विलियम ब्लैक को who composed London poem. He describes the weakness of London city in the London poem. London poem के अंदर उसने he exposes generally 3 steps of human beings: hard life and infant life and the adult life. एक सोल्जर का वर्णन किया था उसने, एक हरलॉट का वर्णन किया था, प्रोस्टिट्यूट जिसको बोलते हैं, पर हरलॉट भी वेश्या को बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट भी बोलते हैं, और एक इन्फेंट की लाइफ का उसका वर्णन किया था कि किस प्रकार दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम वाइल्ड, किस प्रकार वो कष्ट से गुजर रहे हैं। लंदन सिटी इज ए बिग सिटी एंड पॉपुलर सिटी एंड प्रोस्पेरिटी सिटी, एक समृद्ध देश है, बट देयर आर आल्सो वीकनेस इन लंदन। विलियम ब्लैक डिस्क्राइब ओपनली, बिल्कुल खुले रूप में उसका क्या करता है, वर्णन करता है। सिमिलरली T.S. Eliot also exposes the human weakness of London in this point. Prelude. I am reading first question now. Here, listen it carefully. The winter evening settled down. The winter evening. Yes, text begins. देखिएगा first prelude. Prelude is divided into 4 parts. First part, the winter evening settled down. Winter evening, अर्थात शाम की क्या हो गई है? And settled down, सूर्य अस्त धीरे धीरे क्या हो रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है। Settled down with smell of a insect, और जो मांस के टुकड़ों की स्मेल, जो मीट होता है उसको बोलते हैं। With smell of a passageway. passageway का मतलब होता है यात्रियों की गुजरने की जगह। passageway तो राहगीर गुजरते हैं तो उस शहर के अंदर मांस के टुकड़ों की क्या हो रही है? स्मेल आती है। बट जो शहर जितना बड़ा होता है ना, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होती है? वीकनेस होती है, फॉलीज होती है, कमियां होती है। तो कवि T.S. Eliot कहता है कि कुछ विंटर इवनिंग का समय है, सेटल्ड डाउन, और सूर्य अस्त होने के समय पर है, स्मेल ऑफ सेल्फ ऑफ पैसेजवे, यात्रियों के गुजरने की राह पर मांस के टुकड़ों की बदबू आती है। 6 o'clock, लगभग 6 बजे का टाइम है। द बर्न आउट ऑफ एंड ऑफ स्मोकी रेन, द बर्न आउट अर्थात नष्ट कर दिया गया है, स्मोकी धूमिल दिवस है, अर्थात वहां पर चारों तरफ स्मोक है। शाम के समय के अंदर धुआं नहीं होता है चिमनी से, तो पूरे शहर को क्या कर लेता है?
लड़के की शान है। और बाकी गंध भरी हुई है, बीट बाकी स्मेल आ रही है और बीट की दुर्गंध आ रही है, धुआं कवर्ड है, द स्मोक इज कवर्ड द होल सिटी एंड इट इज 6 o'clock। और उस समय लगभग 6 बजे का टाइम है, शाम हो चुकी है, अंधेरे की भरी शाम रहती है। उसके अंधकार की तुलना सिगरेट के जले हुए सिगरेट से की जा सकती है। सिगरेट का जला हुआ कीड़ा होता है ना, उससे की जा सकती है। तो कवि ने इस 3 लाइनों के अंदर, 4 लाइनों के अंदर कवि ने यही बताया है कि वहां शाम का समय हो चुका है और जो भी नारी उधर से गुजरता है तो उसको एक बैड स्मेल वहां पर सहन करनी पड़ती है। एंड नाउ एक जस्टिस फॉर डेथ, अर्थात नाउ अब क्या कर रहा है, नाउ ऑफ डेथ की झोंके ऑफ 7 मिनट, अर्थात लपेट। शॉर्ट लेफ्ट का मतलब होता है WRAPS, रेस्ट का मतलब अंग्रेजी में लपेट का कोशिश का। द ग्रीनिंग स्ट्रिप, द ग्रीनिंग इज गिनोनी ऑफ स्ट्रिप, भोजन की छोटी छोटी टुकड़ी। स्ट्रेच का मतलब होता है भोजन की छोटी छोटी टुकड़ी, मांस के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, जो भी राहत से गुजरता है उसके पैरों में हवा से उड़कर उड़ा होते हैं, चिपक जाते हैं। कितनी बैड डर्टी पैकेट है, बहुत ही इससे पिक्चराइज किया है। द न्यूज़पेपर फ्रॉम द वेकेंट लॉट, अर्थात न्यूज़पेपर अखबार के जो टुकड़े हैं वो उड़ उड़ के क्या कर रहे हैं, ग्रीनी लेफ्ट एंड विदर्ड लीव्स, सूखी हुई पत्तियां, अबाउट योर फीट, जो तुम्हारे पैरों से क्या है टकराती है और उड़कर पैरों में चिपक जाती है। एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम द वेकेंट लॉट, अर्थात अखबार के छोटे छोटे टुकड़े उस सड़क पर क्या हुए हैं, बिखरे हुए। आउटसाइड द हाउस ऑफ जस्टिस ओवर इज ड्राइविंग डर्टी एंड ए न्यूज़पेपर फ्रॉम द ओपन प्लेसेस, अर्थात घरों के बाहर हवा की तेज झोंकी है और अखबार कागज के छोटे छोटे टुकड़े हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं। और गलियों में चलने वाले जो भागी होते हैं, सैंडल होते हैं, उनकी वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड द सोवर बीच, अब क्या करेगा, सोवर SOWER, सोवर बीच, अर्थात वर्षा की जो बौछार है, सोवर BEAT, बीच में बरसात की वो बौछारें। और ब्रोकन ब्लाइंड, अर्थात टूटी हुई खिड़कियों पर या पर्दों पर। एंड चिमनी पोस्ट के ऊपर आकर टकराती है बरसात की बूंदें, जिससे आती ना गिरती है तो खिड़कियों से टकराती है, पर्दों से टकराती है ना। एंड एट ऑफ ए कॉर्नर ऑफ स्टील, अर्थात एक कोने का अगर देखा जाए कुछ दूरी पर एक घोड़ा खड़ा हुआ है जो अपनी मुंह से भाप को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। एंड एट ए कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के एक कोने के अंदर ए लॉन्ग कैब हॉर्स, कैब का मतलब घोड़ा गाड़ी बोल सकते हो, स्ट्रेंड एंड ए स्टम्प, अर्थात उसके मुंह से क्या हो रही है, भाप निकल रही है ना। ए लॉन्ग कैब ड्राइवर एंड द लाइटिंग ऑफ द लैम्प, और शाम का जब हो जाता है तो हर घर के अंदर लाइटनिंग क्या हो जाती है, जला दी जाती है, हर घर के अंदर स्विच करके, और लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि घर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। कभी यहाँ पर विंटर सीजन का वर्णन कर रहा है। वी कैन से दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द सीजन ऑफ विंटर इन दिस पोएम। वर्षा की बहुत सारी खिड़कियों और चिमनियों से क्या कर रही है, टकरा रही है। एक गली के नुक्कड़ पर गाड़ी का घोड़ा भाप निकाल रहा है और गीली जमीन पर अपने खुरों को पटक रहा है। गीली जमीन है, वेट है, और बरसात का टाइम था और पानी की बहुत सारी चिमनियों पर गिर रही थी, पर्दों पर गिर रही थी, विंडो पर गिर रही थी, और घोड़ा एक किनारे पर खड़ा होकर अपने पैरों को क्या कर रहा है, गीली जमीन पर क्या कर रहा है, पटक रहा है ना। फिर गलियों के लैंप क्या करते जाते हैं, लगा दिए जाते हैं ताकि शाम की आग का हो चुका है। The first prelude we have reached, and second prelude I am telling you what is the second prelude. The morning comes to a constant night, अर्थात अब मॉर्निंग हो गई, रात हो गया, लाइट जल गई थी, अब आफ्टर दैट द मॉर्निंग टाइम has come, after that the morning comes to a constant silence, अर्थात जागृत अवस्था में सुबह हो चुका है। और फैंक स्टेल स्मेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, स्मेल ऑफ बियर, बासी बियर की दुर्गंध गली के अंदर देखिए कितना वेल कल्चर्ड लंदन सिटी है। इंग्लैंड एंड
London is well prosperity city, well considered city, but there are many kinds of weakness in London city. T.S. Eliot exposes the weakness of London city. तो क्या कह रहा था? Morning comes to a confluence of faint smell of beer from the sawdust trampled street with the muddy feet that trace of early coffee stand. क्योंकि सुबह लोग उठकर अपने घर से निकल करके कॉफी हाउस की तरफ जाते हैं ना, अपने को रेस्ट करने के लिए, अपने को रिफ्रेश करने के लिए, ताजगी महसूस करने के लिए वो कॉफी हाउस की तरफ क्या करते हैं? दौड़ते हैं। दूसरे फ्लोर में प्रातःकाल का एक चित्र है ना, जिसके प्रारंभ में बियर का गंध से होता है, बुरादे और मिट्टी में भरी हुई गलियों में उड़ रही है। बुरादा और मिट्टी both are lying here and there, जिन्हें रोंदती हुई भीड़ के ऊपर से भीड़ क्या करती है? रोंदती हुई जल्दी खुलने वाले कॉफी स्टैंडों की ओर बढ़ती जाती है। कॉफी स्टैंड जहाँ पर खुले हैं, भीड़ कुछ चीजों को, डस्ट को, रेत को, बुरादे को और बैड स्मेल की जो बियर की स्मेल है उसको रोकते हुए और उस स्टेज पे क्या करते हैं? चले जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम खुल रहा है। विद द अदर नेक्स्ट पीरियड दैट टाइम ऑफ रेजुलेशन दैट थिंग्स ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर वेटिंग डिग्री सेट इन ए थाउजेंड फर्निश्ड रूम। दैट मीन्स यहाँ पर कभी क्या कर रहा है? प्रातःकाल में अनेक प्रकार की गतिविधियां प्रकट होती है। There are many kinds of activities which is happening in this city. जो आने वाले 10 दिनों के तमाम में रंगमंच तैयार हो रहा है, इन गतिविधियों के आधार पर कोई भी व्यक्ति उन सारे हाथों की कल्पना कर सकता है जो हमारे जिस कमरों में खिड़कियों के गन्ने पर उठा रहे हैं, हटा रहे हैं। क्योंकि इस समय जब उठते हैं हमारे हाथ एक्टिव होते हैं। We are not pure in heart and soul and our hand is covering the curtain और पर्दों को हम अपने गंदे हाथों से क्या करते हैं? इकट्ठे करते हैं। बस आज मैं आपको 2 prelude का अध्ययन करूंगा and third and fourth prelude I will tell you next. Okay, the first prelude and second prelude के अंदर एक इवनिंग का वर्णन था और सेकेंड prelude के अंदर मॉर्निंग की जो एक्टिविटीज थी उसका डिस्क्रिप्शन था। इन दोनों डिस्क्रिप्शन का अध्ययन कीजिएगा और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू नेक्स्ट। थैंक यू।